I'll just record this. So I'm Dr. Sonali Gupta, doctor because we really worked so hard for it. And feels good to have an epithet that resounds of your work that you've done. But I'm in the Kulu Valley, a beautiful part of the Himalayas, and we have these sessions which were resumed last week. We had a lecture on Himalayan brown bears last week with the conservationist, Dr. Bipin Rathore. And today we will be talking to Rohitash Vagor, a different field, but so important to culture and heritage of the Himalayas. So before we ask him to start talking, I would love it that you all introduce yourselves. So Dr. Dev Pathak, first of all, so important that you're here. And I would love it if you could introduce yourself. I'm Dev. I can't hear you. Can you hear me wait, now I can hear you. Yes. I'm Dev. I teach sociology at South Asian University in Delhi. Okay. And sociology, but your expertise in folk theater, if you could say something about that, because that's the reason I really want Rohitashu and you to at some time have some kind of panel discussion on theater. If you could tell us a little more about it. I'm one of those from the teeming million in India who must have aspired at some point of time to become a theater actor, which obviously did not happen. And therefore, when I got into higher education, I thought of fulfilling that unsatiated desire by doing some research work, looking at various kind of theater forms, indigenous theater forms, looking at the root and root debate. Very early on, some of the institutional arrangement were made to have that kind of debate, exploration of indigenous theater in formal modern theater format. So all those things have been part of my interest. Lately, before COVID broke out, I was looking at, formally I was trying to do some research on Behrupiyas and Hans, which was basically to explore the most elementary form of performance, particularly performance based on an actor's acting without much attention to prepared script and one dictatorial director sitting at the head of an actor. That's the kind of interest that I have. Therefore, I was quite excited to learn that this talk is happening, and we have watched Rohit in some of the works that he has done, and therefore I'm here with curiosity and interest. I'm sure Rohitash was reminded of his National School of Drama days. So quickly, Rohitashwa, I'm not taking the limelight away from you for now. It's just that we're giving it more time that people can, because we normally do our talks on Sunday. So Saturday is a little different for them. So I'm just giving it time for them to remember and come online. So while we are doing that, I hope you're okay. We just go, because we are a small group right now. If the others can just give a brief about who they are and what interests them about theater, and then I'll go over to you and we'll start. Okay. Is that all right with you? Okay. Okay. Ritu Kapoor. Hey, hi Sonali. प्रणाम तिवारी जी. प्रणाम हिंदी में बात करने ज्यादा बेहतर रहेगा. हाँ जी. हाँ जी. So मैं ऋतु हूँ. मेरी अपनी लर्निंग एंड डेवलपमेंट कंपनी है कॉल्ड रेडमेकर सर्विसेज. मैं एक लाइफ कोच हूँ और एक लाइफ पर्पस कोच हूँ. मैं लोगों को कोच करती हूँ and I'm a master trainer for soft skills. That's a quick intro. And about theater, I love watching भाभी जी घर पे हैं. That's how I know you. And थिएटर में मेरा काफी इंटरेस्ट है. हालांकि मैं कभी मैंने एक्टिंग करी नहीं है. स्कूल डेज में करी थी, बट मौका मिलेगा तो जरूर करूंगी. Thank you, Ritu. Rajoli is my research scholar at the Himalayan Institute. I don't know if she is taking a walk around in the village or what is she doing? Yeah. Hello,
sir. Good evening. I'm Hi, Rajali good evening. Ghosh. I'm a research scholar at HICHS. And I was much interested for this talk today because through ma'am, I got to know that you conduct the Himalayan Fest in Shimla. So I wanted to know more about it. And since I'm part of this institution, I would love to know more about culture and heritage, also from what's coming from you. And also, I've grown up watching you on TV, and my parents love your show. And yes, I'm looking forward to knowing you more today. Thank you, Shukriya. Thank you, sir. बंदा थोड़ी हो सकता है भाभी जी करते हैं सीरियल लेक्शन मेरा उस एंड टॉक से ही देखी देख Oh, I was talking without the mic on. I was trying to mute everybody's mic. So, welcome to our latest Saturday edition of Converse and Traverse with a celebrity. And I'm so fond of the celebrity. He comes from our family. So I took the liberty of requesting him to come online and give a talk on culture and heritage. And a lot of times, people ask, not theater, like television and culture and heritage institute Himalayas, how does it fit in? Well, it does fit in because that's what Rohit Ashwa is here all about. He is from the National School of Drama. He's an alumni from there. I have had the privilege of viewing a lot of his theatrical shows, theatrical as in drama, as in real life theater. And he's worked with the likes of Habib Tanveer ji, M.K. Rena, Ibrahim Al-Qazi, and all these stalwarts in theater who we have heard about, and seems like, a story from yore, but he has lived that story, and his life started in the Himalayas. So that's the key of why he is giving a talk, the Himalayan Institute of Cultural and Heritage Studies, because his life started there, and how he navigated the three realms of theater, television, and cinema, and about his own life. That's what he's going to be talking about. And I'm so, so happy that you accepted this offer of giving a talk. And without taking much time, and we will be, whoever asks questions and they want to introduce themselves, please do raise your hands, and I'll take it in the order it's raised. But first, it's going to be like a dialogue. And I want all of you to come in with questions, because this is an opportunity for all of us to really know who Rohit Ashwa, what is Rohit Ashwa all about? Is he the comedian that we see in the serials like Bhabhi Ji Ghar Par Hai, and what else is he all about? What is his theater kind of life? What has it been, and what is he doing? So Rohit Ashwa, over to you. And we already have a question, and that's my cousin Alka, who's chiming in from the US. So Alka Didi, over to you. You can ask your question. I don't have a question. Just want to say I love you both. I have to get to work, so I'm not going to be on the call. But I wanted to say hi to both of you. I love you both. Okay. Hi, Alka. Hi. Hi, Juju. How are you? You guys have fun, okay? Thank you, Alka. Yeah, shukriya. तो क्योंकि हम थिएटर की बात कर रहे हैं, और जैसे रोहित आश्व जी ने कहा कि हम हिंदी में बात करते हैं, बीच बीच में बाइलिंगुअल भी हो सकते हैं, बस और कोई भाषा में ना बात करें तो बेहतर होगा, हिंदी और इंग्लिश तक अपने आप को सीमित रखें. सो रोहित आश्व जी, आपसे शुरुआत करते हैं. आप अपने बचपन से कहानी शुरू करें. हाउ डिड यू लैंड अप इन द हिमालयस? देखिए, हमारा जो जन्म है वो शिमला में हुआ. पापा शिमला में एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट में नौकरी किया करते थे और साइड बाय साइड रंगमंच किया करते थे. तो उस समय भारत जो है, मतलब आप ये समझ लीजिए कि आजाद हुए कुछ ही साल हुए थे. तो पापा ने जो है एक एसोसिएशन की स्थापना की जिसका नाम है
अखिल भारतीय कलाकार संघ, जिसको हम कहते हैं, इंग्लिश में भी है वो ऑल इंडिया आर्टिस्ट एसोसिएशन शिमला। तो हमारे साथ उस समय जो है वो जो रंगमंच के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रहे थे, इप्टा बॉम्बे के साथ, इप्टा आपने सुना होगा, थिएटर एसोसिएशन है बहुत बड़ी, बलराज जी शिमला बहुत आया करते थे, बलराज साहनी साहब, तो वो और प्रेम चोपड़ा साहब शिमला के ही हैं, और मदन पुरी साहब, इन लोगों ने जो है मेरे पापा को कहा कि हम एक एसोसिएशन की स्थापना करते हैं जहां पर हम अपनी अपनी कला का प्रदर्शन करेंगे। और इसमें जो है, क्योंकि उस समय बहुत सारे झगड़े हुआ करते थे, भारत नया नया आजाद हुआ था, हिंदू मुस्लिम झगड़े ये वो, तो उन्होंने कहा कला एक ऐसा माध्यम है जिस माध्यम से हम इन्हें एक सूत्र में पिरो सकते हैं, क्योंकि हर कोई चाहेगा कि हम, मेरे अंदर जो है उसको मैं प्रदर्शित करूं, चाहे वो कोई भी माध्यम है, संगीत है, नाटक है, या पोइट्री है, कुछ भी मेरे अंदर है, या चित्रकला है। तो एक मंच की जरूरत थी उस समय बहुत ज्यादा। तो एक मोटो को लेकर चले मेरे पापा, नेशनल इंटीग्रेशन थ्रू आर्ट, कला के माध्यम से राष्ट्रीय एकता। और उन्होंने जो है एक थिएटर फेस्टिवल 1955 में शुरू किया इस एसोसिएशन के तहत, और तब से लेकर अब तक हम लगातार ये फेस्टिवल शिमला में ऑर्गेनाइज करते आ रहे हैं, जहाँ ऑल ओवर इंडिया से टीम्स आती हैं, परफॉर्म करती हैं। शौकिया रंगमंच करने वाले ये लोग हैं, क्योंकि मेरे ख्याल से शौकिया रंगमंच करने वालों ने ही रंगमंच को जिंदा रखा हुआ है, क्योंकि वो छोटे छोटे गांवों में, छोटे छोटे प्रदेशों में, छोटी छोटी जगहों पर थिएटर करते हैं, और उन्होंने थिएटर को जिंदा रखा है। हम प्रोफेशनल थिएटर करने वाले लोग जो है ज्यादातर अपना रोजी रोटी कमाने के लिए फिल्मों की तरफ भागते हैं, और कोशिश करते हैं कि हम जो है ग्लैमर की दुनिया को जिए, जैसा कि मेरी भी इच्छा थी और मैंने किया। लेकिन इसके तहत एमेचर थिएटर जो है ज्यादा पनपे, और पापा ने जो है ये पूरी एक परंपरा शुरू की जो आज भी जारी है। अभी 6 तारीख से हम शिमला में करने जा रहे हैं यही फेस्टिवल, 6 से 10 तारीख तक वो शिमला में होगा, जहां ऑल ओवर इंडिया से टीम्स आएंगी। मैं इसमें इस तरह से जुड़ा कि मैं एक चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर काम किया करता था पापा के साथ, जब मैंने होश संभाला 1970 के करीब, तब उन्होंने जो है मुझे एक चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर उसमें काम दिया, और मेरा रोल एक बच्चे का था जिसे डाकू उठा के ले जाते और पापा ने कहा तुम्हें चिल्लाना है, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। तो मैंने जो है वो पूरा एक एक्ट किया, उन्हें बड़ा पसंद आया, और वहां से रंगमंच की मेरी जर्नी जो है वो शुरू हुई। और तब मैंने बहुत सारे नाटकों में काम किया, बहुत सारे, और मेरे जो चाचा जी थे रमेश गौड़, उन्होंने काबुली वाला जो एक नाटक था वो उसकी शुरुआत की शिमला में। इसके हजारों शोज हुए शिमला में और भी पूरे प्रदेश में, जो हम ले लेके जगह जगह घूमते थे। तो मेरी भी उसमें कुछ ना कुछ भूमिका रहा करती थी। लेकिन मैं, सोनाली, हमेशा से ही चाहता था कि मैं रंगमंच को पेशेवर तरीके से अपनाऊं, प्रोफेशनल तरीके से अपनाऊं। उसकी तकनीक क्या है, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो एक तकनीक के तहत काम करती है। तो ये मेरे मन में था कि मैं इसकी तकनीकी और बारीकियों को सीखूं, और इसको मद्देनजर रखते हुए जो है मेरे पापा ने ही मुझे सजेस्ट किया कि दिल्ली में एक थिएटर इंस्टीट्यूट है जहां पर ट्रेनिंग दी जाती है 3 साल की, वो है राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। तो वहां पर मैंने शिमला से जो है अपना फॉर्म भरा, और इत्तेफाक से वहां मेरा सिलेक्शन हुआ, और मेरी प्रोफेशनल थिएटर की जर्नी यूं शुरू हुई। चलो, एक तो मुझे बात आपकी बहुत दिलचस्प लगी कि आपको एक बच्चा बनाया गया। शुरुआत आपकी ऐसे हुई कि आपको डाकू उठा के ले गए। मेरी तो शुरुआत ऐसे हुई कि मेरे को तो दासी ही बनाया गया। जन्माष्टमी में मैं कभी उस उपाधि को ग्रहण ही नहीं कर सकी जिसमें मैं राधा या कृष्ण बन सकी। मेरे सारे कजिन्स ने मुझे हमेशा दासी ही बनाया। तो आई थिंक उस दासी बनने की व्यथा में वो मैं इतनी वो हो गई थी कि मुझे तो थिएटर ही करना था। So anyway, मुझे फिर anyway जब मैंने थिएटर किया तो मैं प्रोग्रेस हुई, दासी से कुछ और बनी, तो मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात थी। So that's really nice कि
आपके फैमिली में आपको बहुत प्रोत्साहित किया, आपको थिएटर में, नाट्य कला में जाने की आपको अनुमति ही मिली, क्योंकि बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनको नाट्य कला, संगीत कला में जाने की अनुमति नहीं दी जाती, बिकॉज हमारी जो फैमिलीज हैं आफ्टर इंडिपेंडेंस, बहुत ये कहा गया कि रोजी रोटी कमाना बहुत अनिवार्य है। तो आपने इसको कैसे बैलेंस किया? आपके फादर ने तो, क्योंकि उनकी इच्छा ही थी, बलराज साहनी जी उनके दोस्त थे, तो ही हैड एन अंडरस्टैंडिंग फॉर कल्चर। तो आपके जो रिलेटिव्स थे और ये सब, उन्होंने आपको कभी परेशान किया इस मुद्दे को लेकर? एक्चुअली जिस तरह से आपने कहा ना कि आपको जो है दासी ही बना के रखा, हमें भी शुरू में बहुत हल्के में लिया गया, बहुत हल्के में, कि ये तो ठीक है, ये तो चलता रहेगा, इसके अलावा भी कुछ कर लो। मतलब ये जो है उन लोगों के लिए कुछ था ही नहीं। मतलब रंगमंच जो है वो उनके लिए सिर्फ एक, मतलब कहते हैं ना, एक शौक पूरा करने वाली चीज। तो उस समय का माहौल भी ऐसा नहीं था, और आप विश्वास नहीं करेंगे, हम कभी भी कोई नाटक उठाते थे तो हमें जो है वो औरतों के को लाने में बड़ी परेशानी हुआ करती थी। कोई कैरेक्टर है जिसमें जो है माँ का रोल करना है या बहन का रोल किसी को करना है, तो हमें जाके बड़ी मिन्नतें करनी पड़ती थी माँ बाप से कि आंटी बहुत अच्छा प्ले है, बहुत जगह जगह घूमेंगे, इसकी कला का विस्तार होगा, और वो हमें भगा दिया करते थे कि भागो, ये सब आवारा लड़के हैं, आवारा है, इनको भगाओ यहाँ से। तो आपको पता है मेरे पापा जो है उस समय उनका तो दौर और भी अलग था, इसीलिए जो है वो उस दौर में मर्द लोग जो है औरतों का रोल किया करते थे। अगर आपने देखा होगा तो कुमार गंधर्व जैसे थे मराठी स्टेज में, वो औरत के ही रूप में इतने विख्यात हुए कि वो सबसे सुंदर अभिनेत्री कहलाए गए। तो ये उस तरह की सोसाइटी थी जो अलाउ ही नहीं करती थी। इतना मुश्किल था ये सब करना, क्योंकि उनके लिए ये विषय है ही नहीं। तो ये सारी परेशानियों से जूझते जूझते जब हम आगे बढ़े, तब हमें समझ में आया कि ये तो पूरी स्टडी है, ये तो पूरी शिक्षा है, इसमें भी पढ़ाई की जाती है। नहीं तो हमें तो पता ही नहीं था, और बहुत सारे लोगों ने हमको उस तरह से प्रोत्साहित भी नहीं किया। लेकिन क्योंकि मेरे फादर थोड़े से रंगमंच से मोहब्बत थी उनको, और उसकी कंपनी ऐसी थी, तो ये चीजें थोड़ी थोड़ी उन्होंने आगे बढ़ानी शुरू की। तो ये तो हुआ आपका सफर, जहां आप हिमालय की एक जगह से आप आगे बढ़े। हिमाचल ने आपको कैसे शेप किया? क्योंकि हम जहाँ से, जहाँ की हमारी आइडेंटिटी होती है, हमारे बिलोंगिंगनेस होती है, जहाँ के हम होते हैं, वहाँ का एक बहुत बड़ा योगदान होता है, और हमें आगे जाके महसूस होता है उस जगह की अहमियत, और जो हमारे एक्सपीरियंसेस रहते हैं। तो वो आपके क्या रहे, और आपको क्या लगता है कि आपकी जो जीवन शैली रही उसमें उसका क्या क्या कंट्रीब्यूशन था? नहीं, बहुत, देखिए हिमाचल ने बहुत बहुत कुछ दिया। इनफैक्ट शिमला में उस समय बहुत अच्छा थिएटर होने लगा था, और मैं इस मामले में थोड़ा सौभाग्यशाली रहा कि लैंग्वेज आर्ट एंड कल्चरल डिपार्टमेंट वालों ने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के साथ मिलकर एक इंटेंसिव थिएटर वर्कशॉप वहां पर आयोजित की थी शिमला में। ये 1985 की बात है। तो एनएसडी के कुछ टीचर्स वहां पर आए थे, और उन्होंने हबीब तनवीर साहब का नाटक आगरा बाजार वहां किया हमारे साथ। पहले तो उन्होंने 1 महीने की हमारे साथ ट्रेनिंग की, पूरी वॉइस एंड स्पीच, योगा और इन तमाम चीजों को लेकर। थोड़े थोड़े चीजें मॉडर्न इंडियन ड्रामा, क्लासिकल इंडियन ड्रामा को भी छुआ, थोड़ा थोड़ा पक्ष उनका। तब हमें पता चला कि तो पूरी स्टडी है, ये ऐसे है। और फिर जब हमने वो नाटक किया तो उसने हमारे अंदर थोड़ी सी चीजें ऐसी जागृत की कि हमें इसको और आगे हम अपने आप को एक्सप्लोर करना चाहिए। तो हिमाचल प्रदेश से उस समय मुझे, और मंडी से पवन शर्मा नाम के एक शख्स है, बहुत टैलेंटेड आदमी है, हम दोनों का सिलेक्शन नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में हुआ। तो हिमाचल का हमारे जीवन में ये कंट्रीब्यूशन रहा। और इससे पहले हम वहां पर बहुत एमेचर थिएटर करते रहे, ग्रुप्स के साथ मिलकर, छोटे छोटे 4-4, 5-5 लड़के मिलकर जो है, कभी कोई मोनोलॉग कर लिया निर्मल वर्मा का, कभी कुछ कर लिया, कभी लक्ष्मी नारायण लाल के नाटक कर लिए। क्योंकि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का प्रभाव आ गया था, तो अच्छे अच्छे नाटक चुनने की एक थोड़ी सी एक शौक हमारा पैदा हुआ कि अभी जो है रमेश मेहता के नाटकों से भी ऊपर उठना चाहिए। पहले हम लोग जो थे वो थोड़ी सी बहुत ही एमेचर स्क्रिप्ट्स चुनते थे, जैसे रमेश मेहता का नाटक अंडर सेक्रेटरी, ढोंग, पति पत्नी और वो
इस तरीके के। फिर बाद में जाकर हमने निर्मल वर्मा हो गए या हबीब तनवीर साहब हो गए, इस तरह के थिएटर से हम वाबस्ता हुए और हम जो है धीरे धीरे एक तरह से नाटक के साहित्य को समझने लगे। ये सारी देन मुझे हिमाचल ने दी। तो ये मेरी एक जर्नी हिमालय से शुरू हुई और धीरे धीरे जो है इसका विस्तार समुद्र की तरफ हुआ। तो आप फिर आए दिल्ली एंड राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय का हिस्सा बनना उस जमाने में ऐसा था, आपके पास वो सुरेखा सीकरी जैसे मनोहर सिंह साहब, उपरा बावकर जी, तुगलक और गिरीश कर्नाड के प्लेज, है ना। तो वो जो पास में जो आपके वो थे इंस्पिरेशन के लिए बहुत बहुत विख्यात लोग थे। और तब राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में मुझे पता है कि जब मैं छोटी थी और मैं वहाँ के रूम्स में जाती थी और समर थिएटर वर्कशॉप्स करने, तो मेरा भी यही था कि मेरे को राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में एडमिशन लेना है। वो तो ऐसा लगता था द सिविल सर्विसेज ऑफ इंडिया। थिएटर में NSD में एडमिशन लेना वाज लाइक टेकिंग एडमिशन इन द सिविल सर्विसेज। इट वाज बहुत स्ट्रिंजेंट कंपटीशन होता था और बहुत ही रिगरस प्रोसेस होता था सिलेक्शन का। तो सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में हम सबको आप बताएं, कितना देखिए सिलेक्शन प्रोसेस उस समय भी मुश्किल था, आज भी उतना ही मुश्किल है, लेकिन थोड़ी सी जो कलाकारों की जो डेडिकेशन है मतलब वो थोड़ी सी बदली है, क्योंकि हम लोग प्योर रंगमंच के लोग थे और रंगमंच ही करने गए थे वहां पर। वो बात अलग है कि हमारी दिशाएं बाद में बदल गई रोजी रोटी की समस्या ने, लेकिन हम लोगों ने उसके लिए बहुत मेहनत की। मतलब हमारे 3 उस समय टेस्ट हुए थे, प्रिलिमिनरी, रिटन और उसके बाद एक वर्कशॉप होती थी पूरी की पूरी जिसमें वो सेलेक्ट किया करते थे। और उसमें वो जैसे तुगलक की स्पीच प्रिपेयर करनी है ना, उमंगो भरी उम्र है सारे आलम को फतेह करने के, तो ये डिक्शन चेक हो गया, ये एज एन एक्टर आपका बॉडी लैंग्वेज, आपका पोस्चर, आपका कैरेक्टराइजेशन आपने किस तरह से की, सब कुछ बहुत ही मतलब बहुत डीपली वो लोग देखा करते थे। फिर आपकी म्यूजिक की सेंस, आपकी पेंटिंग की सेंस, आपकी पोएट्री की सेंस, अगर आप लिखते हैं तो ये सारा कुछ उस समय बहुत ज्यादा विस्तार से किया जाता था। और 1 महीना जो अपने पास हमें रखते थे उसमें वो सिर्फ एक एक आदमी को देखा करते थे कि इसकी गतिविधियां क्या है, नॉट एज एन एक्टर बल्कि एज रोहिताश या एज अ पर्सन, ये करता क्या है, इसके शौक क्या है, ये अगर बैठता है तो कहाँ जाके बैठा है, क्या कर रहा है ये इस समय, पता नहीं कहाँ से कौन कौन से जासूस आपको तीसरी नजर से देख रहे होते थे, कुछ समझ नहीं आता था। तो ये एक बड़ा मुश्किल प्रोसेस था। आपने वाकई बिल्कुल सही बात कही। और चीजें जब बनी तो बहुत खूबसूरत बनी, नई नई चीजें जानने का मौका मिला कि मॉडर्न इंडियन ड्रामा भी कोई चीज है, क्लासिकल इंडियन ड्रामा, वर्ल्ड ड्रामा, और एक्टिंग के कई तरह के प्रकार, कॉमेडी के कई तरह के प्रकार। तो ये सारा कुछ हमने एक्सप्लोर किया, जाना। तो और उसकी प्रैक्टिस फिर रंगमंडल में भी। हाँ, रंगमंडल के बारे में भी बताएं। वो साहित्य कला परिषद के ग्राउंड्स में मुझे अभी तक याद है वहाँ एग्जीबिशन भी होती है और रंगमंडल वहाँ बना हुआ था जहाँ आप लोगों के थिएट्रिकल शोज होते थे। जी जी बिल्कुल। एक्चुअली NSD जाने का मेरा थोड़ा सा इस तरह से बना कि मैं NSD पास होते ही बंबई आ गया। अब आप कहेंगी कि मतलब ऐसे तो बड़े बोल रहे हो कि रंगमंच को बड़े समर्पित थे और फिर बंबई क्यों आ गए दरअसल क्या था, उस समय DD1 का वन अचानक उभरने लगा था और टीवी में जो है वो रामायण, महाभारत, बुनियाद हम लोग से शुरुआत हो गई थी। तो टीवी में भी अचानक एक जरिया दिखने लगा था और पैसे भी कमाए जा सकते थे। तो ये प्रेरणा जो है मुझे कहीं ना कहीं बंबई की तरफ लेकर आई और मैं पास आउट होते ही बंबई आ गए। लेकिन यहाँ आने के बाद मुझे महसूस हुआ कि अभी तो सिर्फ ट्रेनिंग है, अभी इसका रियाज भी तो करना है। ये मेरे पापा ने मुझे बताया। तो वो जो रियाज था, वो रियाज करने के लिए पापा ने फिर मुझे बंबई से बुला लिया और मैंने फिर नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा रेपेटरी कंपनी एज अ फेलोशिप स्टूडेंट ज्वाइन की, एज अ फेलोशिप स्टूडेंट।
एंड आई थिंक वो जो अंश था आपकी लाइफ में, आई थिंक वो उस मेरे ख्याल से, क्योंकि मैंने आपके बहुत शोज देखे हुए हैं, रक्त कल्याण, जूलियस सीजर, खूबसूरत बहू, जिस लाहौर नहीं देखा वो जन्मया नहीं, कुछ कुछ जो मुझे आषाढ़ का याद एक दिन, लहरों के राजहंस, बहुत सारी फहरिस्त है। है। एंड बहुत ही उस टाइम जो म्यूजिक पे जोर होता था, जो डायरेक्टर के साथ आप लोग काम करते थे, इतना हार्ड वर्क, और रेपर्टरी जो एनएसडी की रेपर्टरी, आई थिंक 2 रेपर्टरीज थी, श्री राम सेंटर फॉर परफॉर्मिंग आर्ट्स, उनकी रेपर्टरी और आपकी रेपर्टरी। तो मुझे याद है मैं जब आती थी देखने तो सारे एक्टर्स, अलका अमीन से लेकर सीमा विश्वास जी तक, सब they were so involved in theater and so devoted, and it was a pleasure watching good theater उस जमाने में। तो अब जैसे ये जो आपको ट्रेनिंग यहाँ मिली, इतने इतने अच्छे अच्छे डायरेक्टर से आपने काम किया, जो एक मंडी हाउस का ये जो एक खिंचाव है लोगों में, हम मंडी हाउस जाएंगे और वो चाय पियेंगे, वो चाचा की चाय, उस बारे में आप बताएं। और उसके बाद हमें आप बॉम्बे ले जाइए, जहां आप एक थिएटर से एकदम टेलीविजन की वो वैसी दुनिया में आए। तो पहले मंडी हाउस का खिंचाव और चाचा की चाय, उसके बारे में आपका क्या विचार है? देखिए, मंडी हाउस जो है ना, वो अपने आप में, अगर मैं बंबई की दृष्टि से देखूं तो अपने आप में जो है एक एक पूरा एक स्टेज है, एक पूरा एक सेट है मंडी हाउस। और जहां पर जो है तरह तरह के अभिनेता हैं, चाहे वो एमेचर रंगमंच वाले हैं, प्रोफेशनल रंगमंच वाले हैं, बहुत छोटे छोटे से ग्रुप्स, उस समय तो बहुत ही ज्यादा था। तो हमें एक तरह ऐसा लगा जैसे कि हम एक ऐसी ऐसी जगह पर हैं जहां पर हम बहुत सारे लोगों से इत्तेफाक रख रहे हैं। शायद मैं इसे जानता हूँ, शायद ये मेरी है, शायद ये मेरे साथ थी, ना चाहते हुए भी बहुत सारे लोग एक साथ थे वहां पर। और एक चाय वाला था जिससे मिलकर इकट्ठे पैसे करके हम लोग चाय पिया करते थे। डिस्कशंस थिएटर पर हो रही है, बातचीत हो रही है, कहानियों पर डिस्कशन हो रहा है, मोनोलॉग्स पर, कि एक एक्टर का प्ले करते हैं, चलो एक एक्टर का। और कई बार जो है ना, वो इम्प्रोवाइजेशन शुरू हो जाती थी वहां पर चाय की दुकान के सामने। अचानक एक आदमी एक्टर बन गया और वो परफॉर्म करने लगा। और वहां पर एक नहीं, बड़े बड़े एक्टर्स थे, जैसे निर्मल पांडे थे, अपने मनोज वाजपेयी साहब, सब वहीं की उपज है सब। यूं आपको तो ज्यादा बेहतर पता है क्योंकि उस समय आप भी वहां पाई जाती थी। मंडी हाउस में चाय पीते हुए। तो एक एक बहुत जबरदस्त माहौल था। और आपको मैं एक बात बताऊं कि वो जो चाय वाला था ना, हमारी उस पूरी कंपनी में, उस पूरे लोगों के बीच में, वो भी एक तरह का एक्टर बन गया था। हाँ, एक दिन वो खुद हमको जो है वो एक स्पीच लेकर आ गया कि सर जी ये हमने भी बनाया है, और वो भी जो है वो एक्टर बन गए। तो एक ऐसा ऐसा प्यारा वो माहौल था ना, जो भूले नहीं भूलता। पता नहीं और वो। आप जैसे ये डायलॉग्स की बात करें तो मैं भी एक बात बताना चाहूंगी। जब मैं इजिप्ट में एक्सकवेशंस करती थी तो वहाँ जो मेरे असिस्टेंट वर्कर्स थे इजिप्शियंस, वो लोग दे बॉन्डेड ओवर मी विद डायलॉग्स ऑफ अमिताभ बच्चन। शायद आप लोगों को पता नहीं होगा कि हर मंडे को इजिप्ट में अमिताभ बच्चन की मूवी दिखाई जाती है नेशनल टीवी पर। तो वो रिहर्स कर कर आता था ट्यूसडे को पूरा डायलॉग, और फिर मुझे डायलॉग डिलीवरी देता था। और वो कहता था देखो मैं इतना डिवोटेड हूँ अमिताभ बच्चन के लिए कि मैंने उनका डायलॉग याद किया। और खूब अपनी इजिप्शियन एक्सेंट में वो अमिताभ बच्चन के डायलॉग बोलते थे। तो जैसे आपने कहा वो माहौल और वो जो हमारे जो सिनेमा और टेलीविजन और थिएटर की जो देन है, वो सबको मोहित कर लेती है। चाय वाले को भी मोहित कर लिया। तो बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं। लेकिन बढ़ने से पहले मैं चाहूंगी आपका जो फेवरेट डायलॉग आपको याद हो रंगमंच से, जो आपको ऐसा प्रभावित किया या आपको वाहवाहकार मिली उस डायलॉग को परफॉर्म करते हुए, अगर आपको वो याद है। मुझे तो अपने डायलॉग्स याद हैं, तो बादल सरकार के प्ले के मेरे फेवरेट डायलॉग्स थे। तो आप हमें प्लीज सुनाएं, हम सुनना चाहते हैं। एक्चुअली क्या था, मैं ना हमेशा से ये चाहता था कि मैं हैमलेट का रोल करूं। मैंने जब हैमलेट नाटक शेक्सपियर का पढ़ा, मुझे लगा कि मैं इस अंतर्द्वंद को बहुत अच्छे से जी सकता हूं। पता नहीं अंदर से ऐसा लगता था, लेकिन मुझे वो रोल कभी नहीं मिला। जब भी कास्टिंग होने का टाइम आया, तब हमें जो है, जैसा आपने कहा, दासी या दास बना दिया गया। वो अलग बात है। तो लेकिन मैं अकेले में कुछ ना कुछ चीजें प्रिपेयर कर लिया करता था।
ताकि मैं, वो विदेशी डायरेक्टर थे, विदेशी जॉन रटेलिक आए, उन्होंने हैमलेट हमारे साथ किया। मैंने जो अब जी तोड़ कोशिश की, जी तोड़ की, मैं मेरे को हैमलेट मिले, मुझे हैमलेट मिले। तो उन्होंने मुझे एक तो दास बनाया, एक ग्रेव डिगर्स का भी एक रोल था, वो मुझे और संजय मिश्रा को दे दिया। लेकिन मैंने उनको 4-5 लाइनें ये वाली बोलकर सुनाई थी हैमलेट की, काश कि ये पत्थर जिसमें पिघल सकता और ढल जाता हो उसकी एक बूंद जैसा, या फिर उस अविनाशी ने आत्मघात की मनाही न की होती। कितने नीरस निरर्थक लगते हैं दुनिया के ये सब तौर तरीके। काश के पत्थर जिसको पिघल जाए, मैं ढल जाऊं उसकी बूंद की तरह। ओह, लेकिन नहीं, ये नहीं हो पाएगा, क्योंकि होना या ना होना हमारे हाथ में नहीं है। नहीं, कतई नहीं। ये कुछ एक चीजें थी। तो मैंने जब रटेलिक को मैंने कहा, जॉन ये देखो, कहते रोहिताश इट्स नाइस बट आई थिंक यू कैन डू अ रोल ऑफ ऑफिलिया बेटर देन हैमलेट। तो वहां मैंने आपकी कहा, यार तुमने मनोकामनाएं तो मेरी ऐसी की तैसी कर दी। और आपको पता है उसने फिर मेरे से ऑफिलिया भी ट्राई करवाया। हाँ, पता और नहीं क्या चाह ओफेलिया, रहा था वो। और आपको ओफेलिया का डायलॉग याद है? नहीं, ऑफिलिया का मैं थोड़ा सा भूल रहा हूँ। अच्छा। हाँ, लेकिन क्योंकि हैमलेट में ज्यादा घुसे हुए थे ना। हाँ जी। तो थैंक यू फॉर शेयरिंग दैट। आपके फेवरेट? सोनाली एक्चुअली रेखा भी लाइव आना चाह रही है, कुछ हो सकता है? हाँ जी, वो आ जाए। कहाँ है वो? शिमला बैठी है। नहीं तो वो आ सकती है। आप अगर उनको भेज दें जूम का वो, तो शी कैन कम इन द मीटिंग। या प्लीज टेल हर टू जस्ट ज्वाइन ऑनलाइन, बिकॉज फेसबुक पे लाइव चल रहा है अभी। But if she wants to really come, we would love to have her. Please call her. And while you're doing that, आप बताएंगे आपके फेवरेट डायरेक्टर कौन थे थिएटर के? I'm sure कोई गुस्सा या परेशान नहीं होगा, लेकिन आपके फेवरेट कौन थे और क्यों? ये आप बड़ा पेचीदा सवाल है। मैं एक्चुअली क्या था सोनाली की ना, मैं थोड़ा ना बहुत नर्वस बहुत हुआ करता था उस समय में। बहुत नर्वस हो जाता, छोटी छोटी चीजों में बहुत नर्वस होता था। तो मुझे अगर हल्का सा भी कोई जोर से बोल दे तो या तो मैं डायलॉग भूल जाता था, या फिर मैं, मतलब ऐसा होता था कि अब करें तो क्या करें। मेरे अंदर की पूरी जो स्पॉन्टेनिटी है वो सब कुछ एकदम ब्लैकआउट टाइप का हो जाता था। लेकिन मुझे जो है इस पूरे उसमें रंजीत कपूर साहब ने बहुत प्रभावित किया। वो मेरे पसंदीदा डायरेक्टर्स में से एक थे, क्योंकि वो रिहर्सल करते हुए खुला छोड़ देते थे आपको, और वो कुछ बोलते ही नहीं थे। सिर्फ कुछ कुछ चीजें हल्की हल्की बना दी, जैसे एक पेंटर होता है ना अपना, ऐसे मास्टर स्ट्रोक ऐसे मार के हल्का सा चला जाता है, फिर आएगा, फिर हल्का सा मार के चला जाएगा, और आपको ये पता ही नहीं चलता कि ये परफॉर्मेंस आपने दे दी। तो रंजीत कपूर साहब के साथ खूबसूरत बहू नाटक जो आपने भी देखा, वो मेरा काफी अच्छा रहा, जिसमें मैं बहुत खुल के सामने आया। हालांकि आपने इब्राहिम अलकाजी साहब का रक्त कल्याण भी देखा, जूलियस सीजर भी देखा, सब देखा, लेकिन जो चीज मैंने खुल के महसूस की वो था रंजीत कपूर साहब का थिएटर, जिसमें एक मुसाफिर बेअसबाब, कौवा चला हंस की चाल जो बहुत पॉपुलर हुआ था, या खूबसूरत बहू, ये सारे नाटक मेरे पसंदीदा नाटक रहे, मेरे पसंदीदा डायरेक्टर रंजीत कपूर के साथ। मैंने भी रंजीत कपूर जी के साथ काम किया हुआ है एक स्लैपस्टिक कॉमेडी में, द जनपद किस। आई डोंट नो इफ यू रिमेम्बर। मैंने देखा था जनपद किस। हाँ, श्री राम रेपेट्री में। हाँ जी, तब मैं स्टूडेंट थी श्री राम सेंटर फॉर परफॉर्मिंग आर्ट्स में। तो हम तो फिलर के तौर पे चले जाते थे, लेकिन वो पूरा जो अभ्यास और उनके अंडर काम करने की एक हमको मौका मिला था रंजीत कपूर जी के साथ। तो द जनपद किस मुझे बहुत अच्छे से याद है, और जिस लाहौर ने ही देखा। वाह, और दोनों ही नाटक का मैंने पहला शो देखा था। हाँ जी। सो
Yeah, thank you for fair. I'm sure मतलब everybody agrees with you because that spontaneity जो आप बात कर रहे हैं ना, मुझे याद है मैंने आपको रक्त कल्याण में देखा, और वो जो आपका अटायर था, आई थिंक अ लॉट ऑफ ये जो पीरियड थिएटर होता है उसमें जो आपका पहनावा होता है वो भी आपके कैरेक्टर को इतना ज्यादा अलाइव कर देता है, बिकॉज रक्त कल्याण में आई सॉ पावर, आई डिडंट सी द रोहित आश्व who would forget his lines. But in Khubsurat Bahu, you were spontaneous. I remember that was the Bahu was, for all of you who haven't seen the play, was Seema Biswas ji. Am I correct? जी बिल्कुल Yes. बिल्कुल परफेक्ट। Yes, यस, yes. और आपको एक चीज और बता दूं कि सीमा विश्वास को उसी प्ले से बैंडिट क्वीन में रोल मिला था, Really? क्योंकि शेखर कपूर साहब और तिशु आए थे देखने के लिए वो प्ले, हाँ और जी। भाषा भी हम लोग वही ब्रिज की भाषा बोल रहे थे। हम्म, का हरे हरे मोड़ा, का कर रहे हो हरे, जहाँ बैठ जाए जहाँ टिका ले जे, का कर रहे हो है, ये भाषा वहां की थी जो वो ब्रज वो जो बोला करती थी। हम्म। तो उनकी कास्टिंग भी उसी प्ले से हुई थी। वाह, और निर्मल पांडे जी की भी फिर वहीं से कहीं हुई होगी ना, बिकॉज हाँ जी। सो अब जैसे अब हम आपके थिएटर के दौर से हम मुंबई जा रहे हैं, बट वहां जाने से पहले मैं चाहूंगी जो हमारे ऑडियंस है वो आपसे थिएटर के बारे में पहले क्वेश्चंस पूछे, फिर हम नेक्स्ट रेल्म में जाएंगे, टीवी और सिनेमा के रेल्म में। तो एनीबडी आपके कोई क्वेश्चंस हैं जो आप पूछना चाहते हैं रोहित आश्व जी से अबाउट थिएटर, अबाउट शिमला एंड ऑल ऑफ दैट, बिफोर वी स्टार्ट ऑफ एंड गो ऑन टू द next CD, next stage? Dev, both the Devs actually. Dev, anything on street theater that you would like to ask? मेरा एक साधारण सा प्रश्न था, बहुत अच्छा लग रहा है सुनने में, इसलिए ये रिदम तोड़ते हुए बुरा महसूस हो रहा है, लेकिन एक साधारण सा प्रश्न हमेशा मेरे फिर एक तरह से संपर्क हुआ, तो मॉडर्न थिएटर। देव, कैन यू रिपीट द क्वेश्चन, क्योंकि हम बीच में ना खो दिए थे आपको। अच्छा अच्छा, अभी तो है ना? हाँ हाँ, तो वो हम लोगों को पढ़ने में भी ये दिखाई आता है और ऐसा सुनते भी हैं लोगों से, एनएसडी के एलुमनाई सबसे भी सुनते हैं कि वो आदर्शवाद जो होता है, जो शुरू में बहुत आकर्षण होता है जिसका थिएटर में, वो आदर्शवाद कुछ तरह का बोझ बन जाता है बाद में, उससे थोड़ी सी कठिनाइयां होने लगती हैं। मैंने कैंपस थिएटर में तो यहाँ तक देखा गया है कि जो यूनिवर्सिटी कैंपस में जो थिएटर होता है, जो सोनाली जी बोल रही थी, स्ट्रीट थिएटर या प्रोसेनियम थिएटर भी जो होता है, उसमें वो प्रोपेगेंडा का एलिमेंट इतना स्ट्रांग हो जाता है कि वो आर्ट भी डेवलप करना बंद कर जाता है एक लेवल के बाद। लेकिन आमतौर पर आप तो शिमला में भी थिएटर कर चुके हैं और इप्टा से भी संपर्क आपका रहा होगा, एनएसडी से भी गुजरे हैं, तो आपका क्या आपकी क्या प्रतिक्रिया थी वो आदर्श को लेकर? खास करके शुरू में तो जब वो आज़ादी के तुरंत बाद भारत में जो थिएटर हो रहा था उसमें तो बहुत गहरी पकड़ थी, प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन से लेकर इप्टा सब का वर्चस्व था, तो कैसे उसको डील करते थे? मतलब आज के दौर की बात कर रहे हैं आप? नहीं, उसी दौर की बात कर रहा हूँ जब ये इसका ग्लोरी था, जब थिएटर में आइडियलिज्म एक बड़ा ही बहुत अच्छी बात मानी जाती थी, और अभी भी शायद मानी जाती हो, लेकिन मेरे ख्याल से जो युवक अभिनेता होते होंगे वो कभी ना कभी तो उनको लगता हो कि हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया चीज है ये आदर्शवाद, लेकिन इससे कुछ कठिनाइयां भी होती हैं। तो वो क्या ऐसा कुछ एहसास था, क्या कठिनाइयां होती थी? हाँ बिल्कुल, देखिए इसमें क्या होता है कि एक स्टेज तक तो वो आदर्शवाद अच्छा लगता है, लेकिन बाद में जो है जब कोशिश ये रहती है कि हम थोड़े से नए आयाम तलाश करें। जैसे मैंने आपको कहा कि जब हम स्टार्टिंग में प्लेस किया करते थे तो नाटक जो था उसका नाम था जैसे सरहद पार या सरहद या फौजी, एक आदर्शवाद की थीम पर चीजें चल रही हैं। लेकिन बाद में जो है नए आयाम तलाशने की कोशिशें हुई, जिनमें एक एक्टर या एक डायरेक्टर या राइटर की भी ये मंशा रही कि मैं जो हूँ अपने एक थोड़े से अधिकार क्षेत्र से और बाहर जाके चीजें तलाश करूं। तब जो है शायद लोगों ने
बंगाली रंगमंच के बादल सरकार की तरफ देखना शुरू किया, जिसमें एवं इंद्रजीत जैसे नाटक आए। तो एक तरह की इच्छा रही, और ये इसमें कोई गलत बात भी नहीं है कि आप आदर्शवाद से हटकर अपने आप में और आयाम तलाशें, जो हमने भी तलाशे। और आज जो है हम और भी डिफरेंट चीजें तलाश रहे हैं, क्योंकि डिजिटल माध्यम आ गया है। शायद मैं जवाब दे पाया। जी हाँ, बिल्कुल, धन्यवाद। थैंक यू फॉर दैट। और कोई सवाल है थिएटर से संबंधित? और अगर है तो बताएं, और अगर नहीं है तो हम चलते हैं मुंबई। तो एक और तक पूछना चाहता था मैं। हाँ, यस यस, देव, दैट्स देव। देव अभी एक बहुत ही सुंदर जगह पे हैं, सेंज में, शानगढ़ में। तो देव, ओवर टू यू। तो मैं पूछना चाहता था, जैसे नॉर्मली क्योंकि हम तो रूरल एरिया में रहते हैं, तो जो हमारे यहाँ पे जो ज्यादातर नाटक होते हैं वो सारे रिलीजियस बेस्ड होते हैं ज्यादातर। लाइक हमारे जैसे आप जैसे बाहर तो लोग राइटर होते हैं, इधर होते हैं, यहाँ तो हमारे कृष्णा राम लीला ऐसी चीज होती है। तो जब आप पहले स्टार्ट में कर रहे थे, शुरू में, क्या रिलीजियस ज्यादा था, और फिर आपने काम कर करके आपने दूसरे ढंग के, जो दूसरे रास्तों के समाज, क्या बोलते हैं, like did you in the beginning, was the religious influence on theater stronger than it is now, and what did you do to change it from being a religious theater to a not so religious theater? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत 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 सही कहा। बेसिकली उस समय जो है वो ज्यादा रिलीजियस थिएटर होता था, बहुत आदर्शवाद, बहुत आइडियलिस्टिक किस्म का थिएटर हम लोग किया करते थे। और हमारी यही मंशा रहती थी, हम कोई ना कोई अच्छा मैसेज दें, अच्छा मैसेज, चाहे वो धर्म को लेकर हो, जात को लेकर हो। तो और रिलीजियस थीम्स होती थी, भगवान कृष्ण को लेकर हो गई, राम को लेकर हो गई, रामलीलाओं की फॉर्मेशन भी इसी तरह से हुई थी। तो लेकिन उस समय इस तरह का थिएटर हुआ करता था। लेकिन बाद में जो है हमने थोड़ी सी क्वेश्चन वाले थिएटर शुरू किए, जिसमें हम प्रश्न करें कि अगर ऐसा है तो ऐसा क्यों है। उस समय क्यों वाली प्रथा नहीं थी, उस समय थी सब कुछ बहुत अच्छा है, जो होगा अच्छा होगा, जो हो रहा है वो भी अच्छा ही हो रहा है, हम सबको एकता के सूत्र में बंधना चाहिए। वो एक आदर्श थिएटर था। लेकिन बाद में जो चीजें हुई वो प्रश्नवाचक ज्यादा हो गई, मतलब क्वेश्चन। अगर मैंने नौकरी नहीं की और मैं ये करना चाहता हूं तो क्यों नहीं करूंगा, मुझे ये करना है। तो अचानक कॉन्फ्लिक्ट चेंज हो गया, अंतर्द्वंद चेंज हो गए नाटक। आप समझे मैं क्या कहना चाहता हूं? और आज भी जो है चीजें और भी ज्यादा बदल गई। अब कॉन्फ्लिक्ट का दायरा बहुत बड़ा हो गया है, अब अंतर्द्वंद ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए हैं, बहुत, उसकी बहुत सारी परतें हो गई हैं, एक के नीचे एक, एक के नीचे एक। चाहे आप वेब सीरीज देखिए, आप फैमिली मैन देखिए, या और अब मैं वेब सीरीज की तरफ भी आ रहा हूं क्योंकि बहुत अच्छा डिटेल वर्क उसमें हो रहा है। तो चीजें जो है इस तरह से बदलती चली गई, जो स्वाभाविक भी है और परिवर्तन संसार का नियम भी है। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू जी। Yeah, so we do have a question. Ritu has a question. Ritu, आप प्लीज अपना क्वेश्चन पूछें। ओके, तो आप शिमला की बात कर रहे थे, उसी टाइम पे मेरे फादर वहाँ पे कल्चरल सेक्रेटरी थे, देवकी नंदन कपूर। So probably he might be knowing my father, but my father is not there now. क्या नाम था उनका? देवकी नंदन कपूर। उसी टाइम पे प्रेम चोपड़ा वगैरह ये सब फ्रेंड्स थे आपस में। जी बिल्कुल, हो सकता है। कल्चरल सेक्रेटरी तो प्रॉब्लली आपके फादर जानते होंगे उनको। मेरा ये क्वेश्चन था, बिकॉज आई हैव अ ग्रेट पैशन फॉर थिएटर एंड सिनेमा। तो मेरा एक क्वेश्चन था, बिकॉज नाउ आई हैव क्रॉस्ड 40, आई एम अबाउट 50 नाउ। तो एक छोटा सा रोल सिनेमा में या थिएटर में करने के लिए मेरे पास कोई ट्रेनिंग नहीं है, बट ये मेरी एक विश लिस्ट है, मेरी डिजायर है एक छोटा सा रोल करने के लिए। आप मुझे एडवाइस या सजेस्ट कर सकते हैं कि क्या करना चाहिए if I want to act even for like 5 minutes? आप जो है ना वो कोई आप कहानियां पढ़ती हैं? कहानियां? हाँ, मैं किताबें भी लिखती हूँ, मैं 2 किताबें भी लिखती हूँ। तो आप कोई कहानी
एक मोनोलॉग की तरह प्रिपेयर करें अच्छा, और उसको अपनी इमेजिनेशन से बनाइए स्टेज पर, है ना। मेरे ख्याल से एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज रहेगी आपके लिए। आप बोल रहे हैं कि एक मोनोलॉग के रूप में एक छोटी सी कहानी लिखें और उसका लिखे या वीडियो कोई बना लिखी दें। भी हो या आपने हाँ, लिखी हो, तो उसे आप एक परिवेश में अपनी इमेजिनेशन से बना लें और उसको परफॉर्म करें। ये आपके लिए और बहुत उसका अच्छी एक एक क्लिप बना एक्सरसाइज रहेगी। हाँ और उसका एक क्लिप बना देखें। हाँ, स्क्रिप्ट बनाकर, बेशक कोई स्क्रिप्ट बनाइए, या फिर जैसे हम परफॉर्म कर रहे हैं और उसमें और भी कैरेक्टर्स हैं लेकिन वो इमेजिनरी है, वो है नहीं लेकिन आप उनसे बात कर रही हैं। एंड आजकल तो थैंक यू। फेसबुक और इंस्टा का जमाना है, तो आप हर माध्यम में आप एक एक्टर बन सकते हैं, एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, तो स्काई इज द लिमिट, इजंट इट? ओके, सो लेट्स गो ओवर टू बॉम्बे। अब आप बॉम्बे आते हैं, मुंबई आते हैं अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूर्ण करने। तो आपका पहला एक्सपीरियंस क्या था? मुझे याद है कि मैं जब थिएटर से थोड़ा सा एनएफडीसी की अगर फिल्म्स वगैरह करती थी, और जो कैमरा का जो थिएटर का ये था, कैमरा का ये था, तो मैं बहुत रिस्ट्रिक्टेड फील करती थी। मुझे थिएटर से इतना प्यार है कि मैं सोचती थी कि ये तो एक घुटन है। तो आपको क्या ये महसूस हुआ थिएटर से सिनेमा या टेलीविजन की ओर बढ़ते हुए कि ये तो घुटन है? आप जो थिएटर में एक्सप्रेस कर सकते हैं, आप वो जो कैरेक्टर बन सकते हैं, यहाँ तो एक बहुत स्टडीड वे से हर एक्शन को कंट्रोल करना पड़ता है। तो क्या कंट्रोलिंग एंड ऑल ऑफ दैट, हाउ डिड यू मैनेज, व्हाट डिड यू फील? जी बिल्कुल, बहुत बिल्कुल, क्योंकि देखिए मेरा ना रेपेट्री का बहुत 6 साल का मेरा एक्सपीरियंस रहा, वो भी प्रोफेशनल थिएटर का। तो नेचुरली मेरे सुर जो है थोड़े से ऊपर फिक्स हो चुके थे, है ना। तो मुझे स्टार्टिंग में काफी दिक्कतें पेश आई थी, लेकिन मैंने बहुत अच्छे अच्छे एक्टर्स को अपने ही बीच के वॉच करना बहुत शुरू किया था, जिसमें इरफान, है ना। इरफान उस समय हम जब इवन जब हम नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में थे, तो हम फर्स्ट ईयर में थे, इरफान थर्ड ईयर में थे। इवन वो स्टेज पर भी इतना रियलिस्टिक करते थे कि हमें ये सोच में पड़ जाते थे कि यार ये कौन सा सुर लगाता है, ये इतना इतना रियलिस्टिक है। तो हमने इन लोगों को वॉच कर करके और इनके साथ मिलकर बैठकर बातचीत के दौरान चीजों को एक्सप्लोर करके अपने बहुत सारे जो फिक्स्ड सुर होते हैं ना, उनको थोड़ा सा डाउन किया, थोड़ा सा, और चीजों को जो है ना थोड़ा सा ये किया कि एक कॉम्पैक्ट फ्रेम में हम जो है सिर्फ अपने एक्सप्रेशन से, अपनी बातचीत से, वो भी बहुत लाउड नहीं, सिर्फ एक बातचीत जो हम रियल लाइफ में बोलते हैं उस तरह की चीजें हम एक्सप्लोर करें। तो ये स्टार्टिंग में मुश्किल जरूर था, लेकिन क्योंकि ड्रामा स्कूल की ट्रेनिंग ये भी सिखाती है, तो हमें मुझे खासकर जो है वो थोड़ा सा अपने आप को ढालने में उतनी परेशानी नहीं, लेकिन स्टार्टिंग मेरे लिए थोड़ी सी डिफिकल्ट थी। तो आपका पहला ब्रेक आपको कब मिला, जब आपको लगा आई हैव अराइव्ड? बहुत लेट। मुझे मैंने बहुत सारा काम किया, DD1 के जमाने से हम लोग काम करते रहे, जिसमें फिरदौस एक टेररिज्म पे एक पूरी सीरीज बनी थी दिल्ली में, वो मैं, जाकिर हुसैन, पीयूष मिश्रा, हम ये सब बहुत किया करते थे। कमीशन सीरियल बहुत किए, लेकिन जब मैं बॉम्बे सेकंड इनिंग में आया, फर्स्ट इनिंग में तो मैं चला गया था यहाँ से, मैंने बताया आपको, मैंने फेलोशिप्स शुरू की, उसके बाद रेपेट्री का पूरा दौर, और उसके बाद दोबारा आकर सतीश कौशिक साहब और राजा बुंदेला साहब एक सीरियल बना रहे थे, मुझे चांद चाहिए। आपको पता होगा मुझे चांद चाहिए एक उपन्यास है जो सुरेंद्र वर्मा साहब ने लिखा है, बहुत ही फेमस उपन्यास है वो, मुझे चांद चाहिए। उस पर सतीश भाई एक सीरियल बना रहे थे, तो वो मेरी एक बड़ी अच्छी शुरुआत रही उनके साथ। वो मेरा एक पहला वो था जिससे मेरी टेलीविजन की जर्नी जो है बॉम्बे की शुरू हुई, और वो भी एक पूरा ट्रेनिंग प्रोसेस था सतीश कौशिक साहब के साथ मेरा, बहुत ही बेहतरीन दौर हमारा वो गुजरा। उसके बाद जो एक
पूरी ट्रेनिंग प्रोसेस से गुजरने के बाद टेलीविजन की, इससे उससे जो भी चीजें हमने सीखी, उसमें शरद जोशी की व्यंग रचनाओं पर हमारा एक सीरियल आया जो अश्वनी धीर साहब ने डायरेक्ट किया था और लिखा भी था, वो था लापतागंज। लापतागंज बहुत फेमस हुआ था, जिसमें हम शरद जोशी की व्यंग रचनाओं को प्रेजेंट किया करते थे। लापतागंज एक ऐसा गांव है जहां पर अभाव ही अभाव है, लेकिन वहां के नागरिक उस अभाव में भी कैसे जी रहे हैं, ये चित्रण उस सीरियल में था, सब टीवी पर आता था, जो बहुत बहुत चर्चित हुआ था। तो एक तरह से मेरी शुरुआत वहां से हुई, उसके बाद भाभी जी घर पर, और ये वो करके आगे से आगे दौड़। तो लापतागंज मैंने नहीं देखा, लेकिन आप वहाँ के कोई जो मुकंदी लाल, आई थिंक वाज द हाँ, यस, मुकुंदी लाल गुप्ता एक कॉमन मैन की कहानी थी। एक ऐसा गांव है जहां पर बहुत कम बिजली आती है, पानी तो लगभग न के बराबर है, और वो किस तरह से जो है वहां के लोग उसमें भी खुशियां मनाते जीते हैं, और कैसे उनकी समस्याएं सुलझती हैं और फिर उलझ जाती हैं, फिर कोई दूसरी समस्या पैदा होती है। तो ये शरद जोशी के जितने भी व्यंग थे उनको कंपाइल किया था अश्वनी धीर साहब ने, जिन्होंने ऑफिस नाम से सीरियल जो है वो दिया था सब टीवी को, जो कि बहुत ही बेहतरीन सीरीज कही गई है। तो उसमें से आपका कोई कैरेक्टर जो आप शायद हमारे साथ आज शेयर करना चाहें, मुकंदी लाल का? वी वुड लव टू सी द। देखो, मुकंदी लाल एक कॉमन मैन की कहानी थी, जो थोड़ा सा एक आइडियलिस्टिक किस्म का भी कैरेक्टर था। वो हमेशा से बस प्रश्न किया करता था, जैसे पानी की समस्या है जनाब, अब कहाँ से लाएं, इसका अरेंजमेंट तो आप ही को करना पड़ेगा ना, नहीं करेंगे तो भी हम कर ही लेंगे, होली तो खेलनी है, अगर पानी से नहीं खेली तो सोच लेंगे कि होली पानी से ही खेल रहे हैं, लेकिन खेलेंगे तो जरूर। मतलब इस तरह के डायलॉग। लवली। तो फिर आया आपके मुझे याद है कि हालांकि हम अभी टेलीविजन की बात कर रहे हैं, बट सिनेमा में मैंने आपको देखा है, मुन्ना भाई। मेरे सिनेमा में कोई बहुत ऐसे कोई किरदार रहे नहीं है, लेकिन मैंने कुछ अच्छी फिल्में भी की हैं। जैसे अगर आप मनीष झा की फिल्म मातृभूमि उठा के देखें, या अश्वनी चौधरी साहब की धूप फिल्म, ओमपुरी और रेवती हैं, उसमें कुछ अच्छे काम किए हैं जो कि फेस्टिवल की फिल्में रही हैं। लेकिन फिल्मों की तरफ उतना मेरा वो रहा नहीं, क्योंकि मेरी टेलीविजन की जिंदगी बहुत व्यस्त रही। पिछले 20 साल मतलब ऐसी व्यस्तता में गुजरे हैं कि मैं बयान नहीं कर सकता। तो आप टेलीविजन और थिएटर को कैसे आप नेविगेट करते हैं? अब जैसे आप बता रहे हैं, ये जो आप शिमला हर जैसे आपकी तपोभूमि है, वो आप बार बार जाते हैं, तो टेलीविजन और थिएटर का जो रास्ता है, आप कहीं ढूंढ रहे हैं कि वो कहीं मिल जाएं? उस बारे में हमें बताएं। नहीं, बिल्कुल, अभी देखो, इच्छा तो होती है ना कि हम कुछ वही थोड़ी सी वो चीजें भी करें जो हम थोड़ा सा भूल कर या आगे की तरफ आ गए हैं अभी। तो उसके लिए हम अपना ड्रामा फेस्टिवल शिमला में करते हैं, जो कि 6 से 10 जून को हो रहा है शिमला में। तो यहाँ पर हम अपनी जो है वो पूरी भड़ास निकालते हैं, जाकर लोगों के बीच में उनसे मिलते हैं, जुलते हैं, उनका थिएटर देखते हैं। सामने गेटी थिएटर में ये सारी परफॉर्मेंसेज होंगी। वहां पर अभी लगभग पूरे इंडिया से बहुत सारे लोग वहां पर नाटक लेकर आ रहे हैं। तो ये कमी जो है हम वहां पर पूरी करते हैं। पहले मैं जो अक्सर इस भड़ास को निकालने के लिए कोई ना कोई मोनोलॉग प्रिपेयर किया करता था। जैसे काम करते हुए हमने एक कहानी प्रिपेयर की थी मुंशी प्रेमचंद की बड़े भाई साहब, और एक कहानी हमने प्रिपेयर की थी खेल। तो इस तरीके के मैं मोनोलॉग्स किया करता था, ताकि जो है वो एज एन एक्टर मेरी जो वो प्रैक्टिस है वो थिएटर की भी जारी रहे साथ ही साथ। लेकिन धीरे धीरे अभी क्योंकि व्यस्तता ज्यादा हो गई है, तो वो जो चीज है वो थोड़ी पीछे छूटती जा रही है। लेकिन हम अपने ड्रामा कंपटीशन या फेस्टिवल्स के में शामिल होकर ये चीज पूरी कर लेते हैं। तो आप मुझे ये बताएं कि तिवारी जी का रोल इतना प्रभावशाली और इतना पसंदीदा कैसे हो गया? आपको क्या लगता है?
देखिए, मैं एक बात बताऊं कि टेलीविजन जो है ना वो काफी हद तक राइटर का मीडियम है ना। तो ये जो कॉमेडी, ये जो लिखी गई है, ये जो स्क्रिप्ट लिखी गई है, ये मनोज संतोषी साहब, हबीब तनवीर साहब के साथ बहुत काम किया करते थे, और अपना शशांक बली जो डायरेक्ट करते हैं, और रघुवीर शेखावत साहब, इन्होंने जो है ये स्क्रिप्ट बुनी और मुझे कहा कि रोहिताश इसमें जो है एक शख्स का रोल है, एक बहुत ही कंजूस काइया बिजनेसमैन है जो दिल जो है वो हथेली पे लेके चलता है। तो मैंने कहा सर, मैंने जो है वो मुकुंदी लाल गुप्ता का रोल किया है, इतना आदर्शवादी आदमी है, तो मैं ये कर पाऊंगा? तो उन्होंने कहा रोहिताश बिल्कुल कर पाओगे, क्योंकि ये लिखा ही इस तरह की है कि तुम्हारे चेहरे पर बहुत सूट करता है, और ये जो है एक हिंदीवादी आदमी है और आपकी भाषा में जो है काफी हद तक वो चीज है। तो उन्होंने मुझे अप्रोच किया इस रोल के लिए, और मैं उस समय ये रोल लेने के उसमें नहीं था, क्योंकि नया चैनल था। मैं सोचा करता था कि मैं बड़े चैनल्स के लिए काम करूं, लेकिन मेरी वाइफ रेखा ने मुझे फिर बताया कि रोहिताश ये जो रोल है ना, ये हीरो का रोल है, और ये तिवारी जी और विभूति जी, ये दोनों जो है हीरो हैं। हालांकि थोड़े उम्र दराज है, 50+ के हैं, लेकिन है हीरो। तो इस उम्र में अगर हीरो का रोल मिल रहा है तो तुम्हें करना चाहिए। तो ये मेरी एक तरह से भाभी जी घर में घुसने का एक राह बनी, और फिर हमारे कुछ वो हुए, टेस्ट हुए, ऑडिशंस हुए, और उसमें धीरे धीरे करके हमने ये रोल पा लिया। तो अब आप जब जाते हैं, है ना? और एक चीज और, हाँ, मुझे कतई ये नहीं पता था कि ये सीरियल जो है वो चलेगा। मुझे लगा था ये 3 महीने या 6 महीने का गेम है, क्योंकि बहुत बड़े बड़े सीरियल साथ में चल रहे हैं, तो ये सीरियल पता नहीं कहाँ ठहरेगा। लेकिन मुझे वाकई नहीं पता था कि जिसको हम 3 महीने का मान के चल रहे थे, वो 8 साल उसको हो गए हैं, और आज ये 8वें साल में प्रवेश कर गया है। that's commendable. तो आप जब आम तौर पे जब इधर उधर जाते हैं तो आपको क्या बुलाते हैं, तिवारी जी या रोहिताश्व? तिवारी जी। मेरा असली नाम वाकई पता नहीं लोग भूल चुके हैं या क्या है। इवन आप इंस्टा पे आपने देखा ही होगा, तिवारी जी करके ही संबोधित करते हैं। अभी शिमला में माल रोड पे हजारों लोग मिलेंगे, पीछे से आवाज तिवारी जी, कोई बच्चा बोलेगा तिवारी अंकल, तिवारी जी। ये भी अब तो बस हर कोई बस तिवारी तिवारी तिवारी, तो अपना नाम कहीं गुम हो गया लगता है। ऋतु बता रही हैं कि जब इनकी मदर थी, वो रात के 11 बजे भी आपका सीरियल देखती थी। तो आप तो मतलब एंड इंक्लूडिंग माय मदर, वो बहुत ही पसंद करते थे। एंड आई डू वांट टू टेल, जो आप लोग सब यहाँ हैं, रोहिताश्व एक अच्छे एक्टर ही नहीं, एक बहुत अच्छे इंसान भी हैं। क्योंकि जब मेरी मदर अभी उनका हाल ही में देहांत हुआ 2.5-3 महीने पहले, तो जब वो हॉस्पिटल में थी, रोहिताश्व उनके लिए शॉर्ट वीडियोस रिकॉर्ड करते थे, और वो इतने टाइम्ड अच्छी तरह थे कि हालांकि वो रिकॉर्डेड थे, मेरी मदर उनको रिस्पॉन्ड करती थी। तो रोहिताश्व पूछते थे आप ठीक है सब, तो मम्मा बोलती थी हाँ मैं ठीक हूँ, और वो टाइमिंग इतना परफेक्ट था कि उसके बाद नेक्स्ट डायलॉग स्टार्ट होता था। बट और ये जो काबिलियत है इस समझने की, द पल्स ऑफ द ऑडियंस और द पल्स ऑफ द पीपल, योर पर्सन you're talking to, only comes from a person who has deep understanding of what a sentence can do to another person. And the art of making another person respond is an art of an actor, of a person who's very deeply connected to his soul. And I think Rohitashu has that soul, and very, very alive and kicking on television. So over to you, Rohitashu. And I know it's almost 8 o'clock, but I do want Rohitashu से हम और सवाल पूछे, एंड हम सम अप करें उनकी आगे की जो प्लानिंग है अपनी लाइफ की। और उनकी 2 बहुत प्यारी डॉटर्स हैं, उनकी बड़ी डॉटर इज गोइंग इनटू दिस फील्ड एज वेल, and I also want to comment on his wife, who has been a researcher on cancer, and has been very instrumental in being such a big support to whatever he, of course the selection, आपका जो selection है इस
रोल के लिए भी उन्होंने आपको बोला कि ये करो, तो आगे बोले, आपका आगे का क्या विचार है और आपके कोई क्वेश्चंस हैं यहाँ जो आप पूछना चाहते हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं फेसबुक पे और या ये ओवर टू यू। ओवर टू यू रोहित आश्वित जी। अच्छा, मुझे लगा कोई सवाल पूछ रहा है शायद। कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो प्लीज फील फ्री। उज्जवल ने मुझे मैसेज किया है, उनको एक सवाल है, आप प्लीज पूछिए सवाल, एंड सवाल अच्छा होना चाहिए। ओके, एनीवे, देव, डू यू हैव एनी क्वेश्चंस? जब तक मैं लोग पूछ रहे हैं, मैं सोच रहा हूँ मैं एक घुसा देता हूँ बीच में एक सवाल। हाँ जी, प्लीज डू दैट। तो आपको कभी गुस्सा तो आता होगा, ये मीडियम तो है, एक ऑप्शन देता है टेलीविजन, खास करके वो हिस्सा जो है टेलीविजन का जहाँ काफी कुछ होता रहा है और एक सदाबहार जैसा सिचुएशन बना रहता है। बहुत सारे एक्टर्स को बड़े सारे काम मिलते रहे हैं, काफी सारे एक्टर्स जो बहुत कठिनाई में हो सकते थे उनको अवसर मिला है टेलीविजन से। लेकिन कभी ये खींच, ये गुस्सा तो आता होगा कि एक टाइप कास्ट हो जाने की जो एक समस्या होती है, वो सिनेमा में भी होता है और टेलीविजन में भी होता है। तो वो उसके लिए आपने कभी सोचा है कि नहीं, ये मीडियम जो है एक्टर्स के लिए बड़ा लिमिटिंग, बड़ा छोटा पड़ जाता है, कुछ और करना, कुछ, क्या आपने कभी? बहुत अच्छा सवाल है सर, बहुत कमाल का सवाल किया। मैं आपको बता नहीं सकता हूं कि मैं हमेशा इस अंतर्द्वंद में जीता हूं। मैं पिछले 20 साल से काम कर रहा हूं और प्रभु की दया से मतलब नाम पैसा सब कमाया है, लेकिन सेटिस्फेक्शन नहीं हुई है सर, मैं आपको क्लियर बता दूं। क्योंकि मुझे एक चीज की बड़ी कोफ्त है, मतलब इंडस्ट्री से बड़ा, मतलब थोड़ा गुस्सा भी है, जैसे आपने कहा कि आपको एक ढर्रे में बांध दिया जाता है। जैसे लापतागंज, इससे पहले भी बहुत सारी चीजें, और अब भाभी जी, तो आप एक कॉमिक एक्टर हैं। ये एक तरह की टीस है जो मुझे हमेशा रहती है कि भाई एक्टर हैं, कॉमेडी भी कर लेते हैं, तो आप इस नजरिए से देखें। लेकिन ऐसा हो नहीं पाता सच में। हाल ही में टाइम्स ऑफ इंडिया में भी आया था मेरा एक इंटरव्यू, उसी में मैंने अपनी इस टीस को उजागर किया था। और डेफिनेटली मतलब कई बार आप हर रोज एक चरित्र को जी रहे हैं, कर रहे हैं, तो गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन, और चारों तरफ जब आप देखते हैं कि बहुत बेहतरीन काम भी हो रहा है, बहुत बेहतरीन हमारे ही लोग कमाल का काम भी कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं लगता है कि यार किसी अजीब से गड्ढे में तो नहीं फंस गया जहां से ऊपर आवाज कर रहा हूं और कोई नहीं सुन रहा है। लेकिन क्या कहूं, बस एक इंतजार है कुछ अच्छी चीजें करने का। जैसे अभी वेब सीरीज जो कई बहुत बेहतरीन आई है, बहुत बेहतरीन काम मैंने देखा है वेब अभी जो हो रहा है। जैसे अभी कुछ ही दिन पहले मैंने फैमिली मैन फर्स्ट एंड पार्ट 2 दोनों देखे, और मैंने जाना कि काम की गहराई, कंटेंट की गहराई, और जो शूट किया गया है वो उसकी गहराई, कैरेक्टराइजेशन, कैरेक्टर्स सारे जो एक एक गढ़ा गया है, किस खूबसूरती से गढ़ा गया है। तो हमारी भी इच्छा होती है तो इंसान है तो एक्टर, तो ये शायद ओटीटी से बड़ी उम्मीदें अब हैं सबको, सबके जबान पर वही है, ओटीटी। जी जी जी, But हम भी चाहते हैं वहाँ काम करना। बट आपका प्रमाण पत्र है देश की का आवाम, जो आपको बहुत 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 पसंद करता है। आप एक लाइव करते हैं तो 500-600 लोग आ जाते हैं बात करने, तिवारी जी। नहीं, ये तो है, हमारा देश ना बड़ा मजेदार देश है। मैं आपको बताऊं, मेरी बहन कनाडा में बैठी है, कहती है कि जूजू यार मैं ना कई दिनों से हंसी नहीं हूँ, लेकिन हिंदुस्तान में जब भी जाती हूँ इतना हंसती हूँ। हर स्थिति में मुझे मजा क्यों आता है। मैंने कहा यार कुछ भी है, अभावों के बीच में भी ना यहाँ एक कुछ तो है जो जादू है, जो चलता है। कोई तो है, कोई तो इमोशन है। तो ये यहाँ की जनता है, बेसिकली मोहब्बत करते हो
टूट के मोहब्बत करती है। मतलब आप विश्वास नहीं करेंगे, मैं शिमला जा रहा हूँ, मुझे पता है कि मेरा क्या होगा। मैं जैसे ही गेटी थिएटर से बाहर आऊंगा और मेरे को सब घेर लेंगे सारे, और बड़ा मजा भी आएगा, ऐसी बात नहीं है। बट ये है, ये हमारा देश है जहाँ पर मोहब्बत है तो है, बहुत है। और तो उसमें कोई लॉजिक नहीं है उनका, कुछ नहीं। भैया, ओ तिवारी जी महाराज, आपको मोहब्बत करते हैं। एक तो मैं आपको बता नहीं सकता, मैं कहीं गया तो वो मेरे लिए ना एक बोरी में एक बोरा भर के जूते ले आया, एक बंदा शूज ले आया, पता है आपको। और मैंने शूज कहा अच्छे जनाब थे? क्या है, हैं? शूज अच्छे थे? तो तो वो जो है मुझे कहने लगा, अब सुनिए, अब इसमें से चूज करिए। तो मैंने कहा नहीं जनाब, ये अच्छा नहीं लगता ऐसे, आप क्यों? नहीं नहीं साहब, आप चूज कीजिए इसमें। अच्छा, मैंने बहुत ही बेमन से, मतलब कैसे कैसे करके, जब उसने बहुत जबरदस्ती करी तो मैंने एक जूता, कहता एक नहीं, ये पूरा बोरा आपका है। ये घटना आपको कानपुर की बता रहा हूँ। तो वहां पर मतलब ऐसे ऐसे लोग आपके लिए कभी कुछ भेज देंगे, कभी कुछ। तो ये मोहब्बत है हमारे देश की, हमारे लोगों की, जो कलाकारों से, कला से, जो उनको पसंद आ जाए वो, और वो चाहे कुछ भी हो, पसंद आना चाहिए बस। उसमें कोई लॉजिक नहीं है फालतू का। सो अगर हम आपसे मिलना चाहे तो हमको गेटी थिएटर के दरवाजे पे खड़ा रहना पड़ेगा, और शायद एक बोरी जूतों के साथ। ओह गॉड, अब ये जूते आप पहनाएंगी या बरसाएंगी? हम फूल बरसाएंगे। अच्छा, फूल जूतों के बरसाए। रूप में। हाँ नहीं नहीं, जूते तो कतई नहीं, बट ऐसे ही मजाक कर रहे थे। बट हाँ, मैं ये जरूर आपको कहना चाहूंगी, जो इंस्टीट्यूट है हमारा, हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ कल्चरल एंड हेरिटेज स्टडीज, कल्चर और हेरिटेज बहुत बहुत अहम अंश हैं हमारे इंस्टीट्यूट के। तो स्पेशली कल्चर और हेरिटेज में नाट्य, संगीत, सिनेमा, ये सब आते हैं। तो मैं एक्चुअली चाहूंगी, मैं प्रपोज करना चाहूंगी कि यहाँ आप हैं रोहिताश्व जी, देव पाठक हैं, हमको यहाँ मिलकर कुछ करना चाहिए अपने पैमाने पे, जहाँ हम फोक थिएटर एंड फोकलोर एंड हिमालय से संबंधित, बिकॉज यू नो हिमालयन इंस्टीट्यूट है, लेकिन थ्योरी एंड प्रैक्टिस, practitioners and people who are into the study of theater and folk theater. I think we should have a panel discussion in the future, and हम सबको एकाग्र होकर कुछ यहाँ करना चाहिए। मतलब चाहे वो छोटे स्केल पर हो, आई डोंट थिंक गेटी के थिएटर के स्केल पे हो सकता है, क्योंकि वो तो आपकी इतनी पुरानी एक शैली चली आ रही है धरोहर के तौर पर। बट यहाँ भी आप कुछ आरंभ करिए। वी वुड लाइक टू यू नो मेक दिस अ प्लेस फॉर थिएटर, एंड जहां आप अपने पूरे साल में कुछ दिन हमारे साथ भी बिता पाए। वाह क्या बात है। मतलब कुछ दिन तो गुजारे कुल्लू वैली में। हाँ जी। कुल्लू घाटी में। कुल्लू घाटी में। बहुत अच्छा विचार है सोनाली, बहुत ही अच्छा विचार है। कमाल है, मजा आएगा। बस थोड़ी समय का अभाव है, वो कहीं ना कहीं निकालेंगे जरूर। देव साहब साथ होंगे, हमें उनसे भी बहुत कुछ जानने और सीखने को मिलेगा। बहुत अच्छा विचार है। हम एक्चुअली सोच रहे हैं कि जैसे ऑनलाइन कोर्सेज भी करें थिएटर और फोक एंड परफॉर्मेंस स्टडीज से रिलेटेड। तो जब समय ना हो तो वी वुड लव यू नो यू आल्सो टू बी इन्वॉल्व्ड इन दिस, बिकॉज आपने ये पढ़ाई की हुई है, आपने एक्सपीरियंशियल लेवल पे इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव somebody who can talk about it, and of course you know under the guidance of Dave, and I will you know just fit in where in the anthropological way of things, but let's do something which helps and enhances our understanding of theater, and make sure that it doesn't die from any part of India, not from Shimla of course, not from Bombay, not from Delhi, and not from Kullu Valley as well. So एक हमारा ट्रेडिशन है यहाँ इस फोरम का कि जब स्पीकर आते हैं वो जाते जाते कुछ वर्ड्स ऑफ विजडम बोल के जाते हैं. सो वी डिड कन्वर्स विद यू एंड वी ट्रैवर्स्ड विद यू, बट व्हाट आर द वर्ड्स ऑफ विजडम फ्रॉम यू on culture and heritage, and what do you think is important?
नहीं, बिल्कुल इसमें संस्कृति का बहुत बड़ा हाथ रहेगा, और अगर हम मिलकर कुछ चीजें करेंगी तो हमें भी एक्चुअली वहाँ की संस्कृति के बारे में ज्यादा जानने का मौका मिलेगा और गहराई से। मेरे ख्याल से इस पर हम डिस्कस करते रहें तो ज्यादा बेहतर है, और एक समय निकालें। So with that हम जुलाई में कोशिश करेंगे कि एक पैनल खड़ा करें जिसमें परफॉर्मेंस स्टडीज, थिएटर और इस फील्ड से हम कुछ गिने चुने लोगों को लाएं, एंड आप दोनों इसमें प्रमुख हैं। तो मैं I'll keep in touch with both of you and all of you जो आप यहाँ हो, थैंक यू। आप शनिवार को आए। आप अपने कैमरास ऑन कर लीजिए so that we can all see who all are here. Some have left, but some are still here. So please show your faces and let's bid goodbye to this wonderful talk, which is available on Facebook. Please share it with everybody. And I'm so happy that we all had these discussions on Rohit Ashwaji's life, childhood, from the Himalayas to Mumbai, traversing the 3 realms of theater, television, and cinema. Thanks so much. शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा सुनकर। थैंक यू सर, थैंक यू। Bye.